lecture we will see again some basics that we had seen in our last lecture. हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा और एक्सेल शीट के साथ कैसे प्ले करना है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सेल शीट वाज अवेलेबल, उसको मैंने पीपीटी में डाल दिया है। सो देयर वाज वन एक्सेल शीट जिसका हमने नाम दिया था डेटा, उसको हम लोगों ने अपलोड किया था पाइथन में, टीवी रेडियो सोशल मीडिया एंड सेल्स। फिर हमने क्या किया था कि ये वाले एक्सेल शीट को, डेटा नाम के एक्सेल शीट को दो और एक्सेल शीट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था। जैसे एक एक्सेल शीट है जिसका नाम एक्स दिया था, उसके अंदर सेल्स वाज नॉट देयर, इफ यू कैन सी सेल्स वाज नॉट देयर, तो हमने डिलीट कर दिया था सेल्स को, ठीक है। फिर दूसरा एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया था जिसके अंदर ओनली सेल्स वर देयर एंड दी अदर 3 कॉलम्स वर नॉट देयर, ठीक है। इस प्रकार से वी हैड created 2 Excel sheets from a single Excel sheet. So let us do that again. Now here you also practice with me. Again I will not be opening Python and everything. So again here I will import what? Pandas. See, whenever you are starting with a new part you have to import a library. So import pandas as pd. After that I will write data is equal to pd dot read underscore csv. Actually it will write it as it is. So what I'll do is I'll go in this folder again, I'll go in this drive. In drive section I had my drive. From my drive again I will search that file that was, see this, marketing.csv. I'll go here, I'll copy the path. After copying the path again I'll go over here, double inverted comma, in double inverted comma I need to copy the path. The double inverted comma में copy the path, then you run it again. When you run it, it has been uploaded, but in order to see I need to write a print command. तो print data, data में store किया है ना, तो print command. See, so this was the Excel sheet. अब मुझे क्या चाहिए? I am just following this PDF. इस Excel sheet में से दो Excel sheet चाहिए, एक चाहिए X. In this X, sales should not be there. If sales should not be there, I need to delete this column for X. So I'm creating this column, say X. I don't want to generate by AI. So let me put it over here. X is equal to data dot drop. It is showing me, the AI part is showing what I'm supposed to write. Okay. Sales को delete करना है. So capital S, ALES. And then you put axis is equal to 1. It is very simple. I've run it, then again I'm doing it very fast because I have already done this part. Okay, so this is my X, this is my X, wherein TV is there, radio is there, social media is there, but sales is not there. Let me just print. Here only I will put the code. Here only I will put the code. So next part is my Y. So Y is equal to, I can write like this, data dot sales. For sales, S is capital, SALES, data dot sales. Okay, so it is printing only X. See, till now it has printed. When the algorithm runs, it will see X. X is stored, the dropped part is stored in X, then it will print X, then Y is equal to data dot sales. मतलब डेटा नाम के एक्सेल शीट में जो सेल्स वाला कॉलम है वो Y में चला जाएगा, लेकिन Y को प्रिंट नहीं किया गया है. So I will print again Y. If I print again Y, see, now you can see Y again. Oh god, what's happening? Okay, so now this is nothing but your X part. From here to your 12, this is nothing but your X, and after that it has printed your Y part. You can see this part is Y again, starting from 0 numbering. So this is your Y. So it has printed both the Excel sheets. Okay, now what is the next part? What I'm supposed to do is a new code we will see. Now दिस वॉज माई पुराना एक्स एंड वाई. तो हम लोग को एक्स एंड वाई मिल चुका है अभी. एक्स के अंदर 3 कॉलम्स थे, वाई के अंदर 1 कॉलम था. अब मुझे क्या चाहिए, दैट आई स्प्लिट
दिस एक्स एंड वाई स्प्लिट मतलब यहां से सेंटर से मुझे उसको कट कर देना है, यहां से ऐसे कट कर देना है। व्हेन आई कट फ्रॉम सम सेंटर पार्ट या बीच से कहीं से अगर मैं कट करता हूं, सो यू कैन सी ओवर हियर दिस एक्स इज डिवाइडेड इनटू टू एक्सेल शीट। अपर वाला पार्ट बन गया है x1, नीचे वाला पार्ट बन गया है x2। सिमिलरली y मेरा ऊपर वाला पार्ट बन गया है y1, नीचे वाला पार्ट बन गया है y2। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दो एक्सेल शीट से हमें चार एक्सेल शीट बनाने हैं, दो एक्सेल शीट से हमें चार एक्सेल शीट बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कोड लिखना है, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव एक्स एंड वाई से x1 x2 बनना है, x से बनना है x1 x2, y से बनना है y1 y2। तो टू एक्सेल शीट से चार बनने हैं, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो चलो, लेकिन जब हम इसको स्प्लिट करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो कुछ रेशो में करना पड़ता है। जैसे ऊपर वाला हो गया 60%, नीचे वाला हो गया 40%, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लेट अस सी ओवर हियर, उसका कोड लिखने के लिए दो एक्सेल शीट से चार एक्सेल शीट बनाने का कोड हम लिखेंगे। एक्सेल शीट को चार में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू इंपोर्ट वन लाइब्रेरी। तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, ठीक है। यहां लिखा है बट देन मैं फिर से लिख रहा हूं बिकॉज आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग विथ मी। वहां से इंपोर्ट करना है एक फोल्डर को जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, sklearn नाम की एक लाइब्रेरी है, जैसे पैंडाज नाम की एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी मतलब एक फोल्डर, उस sklearn लाइब्रेरी में से मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक कोड को इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, सी ओवर हियर, मुझे क्या चाहिए, इफ यू सी केयरफुली, आई वांट 4 एक्सेल शीट्स, x1 x2 y1 एंड y2। तो वो जो हमें एक्सेल शीट्स चाहिए उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल x1, x2, y1, y2। ये चार एक्सेल शीट्स हमें चाहिए। हमें कहाँ से चाहिए, कौन उसे ब्रेक करेगा, ये फंक्शन उसे ब्रेक करेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। दिस विल ब्रेक इट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, x, when you write over x का मतलब when this x will break you will get x1 and x2, when this x will break you will get x1 and x2, कॉमा करके जब आप जो भी यहाँ पे लेटर लिखते हो y, so when y will break, y जब ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा y1 and y2। see over here, x ब्रेक किया तो मिला x1 and x2, y ब्रेक किया तो मिला y1 and y2। तो यहाँ ऐसा लिखना पड़ता है। अगर आपने गलती से यहाँ पे y1 y2 पहले लिख दिया और यहाँ पे x लिखा, तो वो क्या समझेगा कि x को ब्रेक करोगे तो y1 and y2 मिलेगा, लाइक दिस। तो यहाँ दो चीजें जो पहले लिख रहे हो वो कहाँ से आया है, यहाँ की पहली चीज से आया है। बाद में दो जो लिख रहे हो वो आया है यहाँ से, y में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, x, y। टेस्ट साइज, मैंने आपको बोला कि कितने परसेंटेज में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट साइज, टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.2। इफ आई राइट 0.2 का मतलब होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है, द लोअर पार्ट इज 20%, ऊपर वाला पार्ट इज 80%। क्या मतलब बोला मैंने, अगर मैं लिख रहा हूँ टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.2, मतलब ये जो नीचे वाला सेक्शन है, दिस x2 एंड y2, नीचे वाला जो दोनों सेक्शन है दैट विल बी 20% एंड ऊपर वाला पार्ट विल बी 80%। तो नीचे वाले सेक्शन का हम हमेशा रेशो यहाँ पर लिखते हैं 0.2, ठीक है। अगेन आफ्टर डूइंग दिस लेट मी जस्ट शिफ्ट एंड एंटर करने के बाद में लेट मी जस्ट प्रिंट x1 x2 y1 एंड y2। तो देखो यहाँ पे आ चुका है हर चीज। मैंने सीधा टैब का बटन दबाया एंड इट गॉट ऑटोमेटिकली रिटन। टैब दबा दोगे तो सब अपने आप आ जाएगा। जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मे बी टैब की फैसिलिटी उनके पास है कि नहीं है पता नहीं, यू नीड टू टाइप इट। तो मैंने 4 बार प्रिंट कमांड दे दिया है, प्रिंट x1, प्रिंट x2, प्रिंट y1, प्रिंट y2। लेट मी रन इट। व्हेन आई रन दिस यू कैन सी हियर केयरफुली, सी हियर प्रिंट x1, सो दिस पार्ट इज माय x1, दिस इज माय x1, ठीक है। देन प्रिंट x2, this part again TV, radio and social media, see only 20%। 20% में सिर्फ नीचे की 3 ही आए हैं,
ओनली 20% ना, तो नीचे का 3 है, ऊपर का 80% है। देन प्रिंट y1, y1 का मतलब ये वाला पार्ट, प्रिंट y1 ये वाला पार्ट, दिस वाला एक्सेल, y1 वाला एक्सेल। सो दिस y1 वाला एक्सेल इज दिस वन पार्ट, this one till here is your y1 and y2 is this much part, lower ka 3, this is nothing but your y2. This is how you split two excel sheets into 4 in a particular ratio. You split two excel sheets into 4 in a particular ratio. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे एक्स वाई अंडर फिर कॉमा करके टेस्ट साइज लिखने के बाद अगर आप एक और कमांड देते हो यहाँ पे रैंडम नंबर, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट लिखते हो और लिख देते हो यहाँ पे 1, फिर इसको रन करते हो। रैंडम अंडरस्कोर स्टेट क्या करता है, इफ यू सी केयरफुली ओवर हियर, तो यहाँ पे जो x1 प्रिंट हुआ है, प्रिंट x1 ना, जो 80% था x1 का, वो जो है इतना, उसकी इंडेक्सिंग देखो कैसा है, 10 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 7 है, 12 है, मतलब कि whenever you split two excel sheet into 4, I repeat again, whenever you split two excel sheet into 4, आपका जो अरेंजमेंट होता है रोज का वो रैंडमली हो जाता है। 80% उसको ऊपर रखना था तो उसने 80% रैंडम डेटा ऊपर रखा है, ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 10 तक वो 80% होता है, तो वैसे नहीं, इट हैज केप्ट ऑल द रैंडम नंबर्स। सी, पहले 10th वाला रो रखा है, फिर फर्स्ट वाला रो रखा है, फिर 6th वाला रो रखा हुआ है। देयर इज अ रीजन व्हाई सॉफ्टवेयर इज डूइंग दिस, दैट वी विल कम टू इट लेटर ऑन, बट समझो कि ऐसे ही होता है। जब मैं इस रैंडम स्टेट का वैल्यू चेंज कर दूंगा, 1 से 2 पे कर दूंगा, तो पहले देखो 10 था यहाँ पे, यू कैन सी 10 वाज हियर इनिशियली, so from random state 1 to if I do random state 2, the numbering may change. Again I am running it, again I am running it, you see 10 के जगह पे पहले 5 आ गया है। So what is this random state? This random state tells you about the random arrangement. हर random state 1 2 3 के लिए अलग अरेंजमेंट होगा, 2 के लिए अलग अरेंजमेंट, 3 के लिए अलग अरेंजमेंट, 10 के लिए अलग, 40 के लिए अलग। तो जितना आप वो चेंज करते जाओगे उतना अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ वी विल सी what is artificial intelligence. Now we are getting into the theoretical part of artificial intelligence. Okay, now we will start with the basic definition. सुन लो सिर्फ, machine learning focuses on the use of data and algorithm to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy. ठीक है, अब ये समझ में तो नहीं आया होगा कुछ भी कि क्या होता है। नाउ लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड। नाउ यू प्लीज अंडरस्टैंड कि एक 6 महीना या फिर 7 महीने का बच्चा किस तरीके से लर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब वो 6 महीने का होता है तो चीज़ें रिकग्नाइज करना स्टार्ट होता है। बहुत पहले, अभी से कुछ 30-40 ईयर्स बैक, जब फर्स्ट AI/ML का जब भी सॉफ्टवेयर बना था, तो वो इसी एनालॉजी से बना था कि एक बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। हाउ डज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एंड प्रिडिक्ट्स व्हाट इज देयर इन द एनवायरनमेंट। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड करना क्या होता है, दूसरी बात प्रिडिक्ट करना क्या होता है। ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो है बच्चा 6-7 महीने का एंड देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। मम्मी क्या करती है, मम्मी एक ऑब्जेक्ट दिखाती है विच इज राउंड लाइक एंड रेड इन कलर। आई रिपीट, राउंड लाइक रेड इन कलर। उसको एक एप्पल दिखाती है पहले और बोलती है कि देखो बेटा, इफ समथिंग इज राउंड लाइक एंड इट इज रेड इन कलर, इट इज एन एप्पल। उसको समझा दिया दैट दिस इज एन एप्पल। ठीक है, एंड फिर उसको समझ में आ गया, अभी उसके दिमाग में बैठ गया कि चलो इट इज एन एप्पल। तो फर्स्ट टाइम जब एप्पल दिखाया तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि रेड लाइक है, राउंड इन कलर है, तो वो एक एप्पल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करती है, उसको एक परफेक्ट राउंड और रेड इन कलर ऑब्जेक्ट दिखाती है। ठीक है, और फिर अभी उसको पूछती है कि ये क्या है, इट इज परफेक्टली राउंड, इट इज परफेक्टली रेड इन कलर। अब बच्चे ने तो पहले क्या देखा हुआ है कि अगर कोई राउंड जैसी चीज है और रेड इन कलर है तो क्या होगा, वो एप्पल होगा। तो अब बच्चा प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है और बोलता है कि ये एक एप्पल है। ठीक है, अभी समझ में आया प्रिडिक्ट करना क्या होता है और अंडरस्टैंड करना क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट अ लर्निंग प्रोसीजर। उसने सीखा,
फर्स्ट वाले डेटा से, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड डेटा, ये क्या था, राउंड लाइक रेड, इट वाज इनपुट डेटा। मम्मी ने इनपुट दिया कि राउंड लाइक और रेड है। ये क्या है, ये आउटपुट है, आउटपुट भी दिखा दिया, आंसर भी दिखा दिया कि ये एक एप्पल है, तो वो समझ गया कि चलो ये एप्पल है। नेक्स्ट टाइम ये लर्निंग हो गई फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट टाइम में नाउ ही इज प्रिडिक्टिंग, उसका प्रिडिक्शन गलत है, ठीक है, प्रिडिक्शन तो गलत है, तो क्या होगा, गलत प्रिडिक्शन में अब मम्मी उसको समझाएगी कि देख बेटा, इट इज नॉट एन एप्पल बट इट इज अ बॉल, ठीक है, राउंड है ये, परफेक्टली राउंड है, तो ये एप्पल नहीं है, ये बॉल है। तो उसको लगेगा चलो परफेक्टली राउंड होना चाहिए तभी वो बॉल होगा, अगर राउंड लाइक है तो वो एप्पल होगा। फिर नेक्स्ट टाइम एक और चीज दिखाती है जो राउंड लाइक है बट ग्रीन इन कलर है, राउंड लाइक ग्रीन इन कलर, लेकिन ये पहले एप्पल वाले से थोड़ा ज्यादा राउंड है वो, ठीक है। तो अब बच्चा क्या प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, वो क्या करता है कि ये भी एक बॉल है लेकिन एक ग्रीन कलर का बड़ा बॉल है, उसके दिमाग में तो वही चल रहा है, ठीक है। तो अब उसको फिर से फीडबैक जाएगा कि देख ये वाटरमेलन है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है ये वाली चीजें। तो इस तरीके से कंप्लीट 6 to 9 मंथ, 10 मंथ तक, जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता, 1 साल या फिर 1.5 साल का नहीं हो जाता, कंटिन्यूसली उसके दिमाग में ऐसा एक लर्निंग प्रोसीजर चलते रहता है, कंटिन्यूसली अ फीडबैक हैज टू बी गिवन टू अ चाइल्ड, and this is the way human brain learns, human brain understand, learns on the basis of feedback। अभी आज तक आप लोगों ने ड्रैगन तो नहीं देखा है, लेकिन आपने उसके बारे में सुना है, ठीक है, आपने उसके बारे में सुना है, वो सुन सुन के आप लोगों ने लर्न की हुई है। आज के डेट में अगर कोई ऐसा इंसेक्ट या ऐसा कोई एनिमल आ गया जिसको आपने कभी देखा नहीं है और वो लिजर्ड जैसा दिखता हो, तो आप क्या बोलोगे, ये वो लिजर्ड है, भले वो लिजर्ड है नहीं है, दिख रहा है ना उसके जैसा, तो आपने तो पहले लिजर्ड के बारे में पढ़ा है, पर उसके जैसा दिख रहा है, सो यू विल से दैट इट इज अ लिजर्ड, ठीक है। So whatever you learn, whatever you have learned till now from your birth, अभी तक you have understood everything on the basis of data। तो यहाँ पे डेटा क्या था, यहाँ पे डेटा था ये शेप कलर था डेटा, इवन ऑब्जेक्ट शोन वाज डेटा। डिफरेंस क्या है दो डेटा के बीच में, शेप कलर एंड ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस इज शेप एंड कलर आर द इनपुट्स, ठीक है, शेप एंड कलर आर इनपुट्स और आउटपुट है ऑब्जेक्ट शोन। ये अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से लर्न करता है, डेटा से लर्न करता है। अभी क्या हो गया ना, बहुत सालों पहले जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा था उसी तरीके से इन लोगों ने सोचा कि लेट अस मेक अ सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड दिस थिंग। डेटा जैसे ह्यूमन ब्रेन फर्स्ट डेटा से कुछ कुछ सीख रहा है, एरर कम कर रहा है ना अपना, कुछ ऐसा एक साल बाद ऐसा आएगा कि मम्मी वाटरमेलन दिखाएगी बच्चे को और बोलेगी बता ये क्या है, तो वो समझ जाएगा कि वाटरमेलन है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वट एवर चाइल्ड इज सेइंग एंड वट एवर इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, इफ दे बोथ आर सेम वी कैन से दैट द एरर इज जीरो, मतलब बच्चा समझ चुका है, लर्न कर चुका है वो, ठीक है। वैसे ही अगर यही काम अगर कोई सॉफ्टवेयर करे या कोई मशीन करे या कोई रोबोट करे, तो उसको हम बोलेंगे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ेंगे ये वाला डेफिनेशन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम। डेटा जैसे डेटा शीट हमने उस दिन देखा था, और यहाँ पे क्या डेटा है, शेप कलर ऑब्जेक्ट शोन। सो यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम to imitate that, to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy। एक्यूरेसी बढ़ रही है, देखो पहले उसने एप्पल प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, ठीक है, ये तो पहले मम्मी ने ही बताया था उसको, तो ये पहला वाला इटरेशन तो छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम करते करते जब तक वो 10-12 महीने का होता है तब तक उसकी एक्यूरेसी बढ़ते 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 वो एक्चुअल चीजें बताने लगता है। तो वही है, फोकस इज ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमंस लर्न, ग्रेजुअली इंप्रूविंग इट्स एक्यूरेसी। समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट मशीन लर्निंग, दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो अभी समझ में भी नहीं आएगा, दोनों का काम प्रिडिक्शन का ही है, ठीक है। तो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। अभी देखते हैं नंबर्स के साथ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है।
हम कोई एल्गोरिदम नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप उस स्टेज पे नहीं हो कि आप एल्गोरिदम पढ़ सको। थर्ड ईयर के बच्चे अभी, थर्ड ईयर के भी नहीं, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते हैं एल्गोरिदम के बारे में, तो आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेटा शीट के साथ में। ठीक है, आपको जो भी डाउट होगा ना यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस में भेजना। मेरे पास दो सिस्टम है, लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन है, तो आप सीधा इन कॉल मैसेजेस में डालोगे तो मुझे दिख जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मेरे लिए फिर व्हाट्सएप ओपन करके देखना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो नाउ ओवर हियर एक मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, एक मार्केटिंग कंपनी है, उसका पिछले 23 मंथ का डेटा है हमारे पास। ठीक है, क्या डेटा है देखते हैं। अभी देखो, पहले महीने में जब रेडियो की मार्केटिंग में $37.8 स्पेंड किया गया, आई रिपीट अगेन, इन फर्स्ट मंथ when $37.8 was spent in radio marketing, the sale obtained was $22.1। तो ये है सेल और यहाँ पे है रेडियो मार्केटिंग, और ये यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है महीने का, मंथ का। तो पहला वाला कॉलम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर सेकेंड महीने में when they spent $44.5 in marketing, they received $45.1 का सेल। ऐसे करते करते ना 23 महीने का डेटा अवेलेबल है। तो 23rd मंथ में when they spent $13.2 in marketing, they received $49.6 का सेल। इस डेटा शीट की मदद से, ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी ना कि अभी तक उसको पता नहीं है कि कितना पैसा डालूंगा तो कितना रेडियो की सेल होगी। तो ये कंपनी क्या करेगा, ये अपना डेटा शीट उठाएगा 23 मंथ का और वो किसी कंसल्टेंट को दे देगा। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट को दे देगा और वो बोलेगा कि इस डेटा शीट से मुझे एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करके दो, सो दैट इफ आई आस्क दैट सॉफ्टवेयर, इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करके दो, सो दैट इफ आई आस्क दैट सॉफ्टवेयर that if I spend $92 for marketing, how much sale I will be getting? So the software should answer some number like $12 or $13। या फिर उसको पूछा जाए कि if I spend $112 in marketing, how much sale I'll be getting? डेफिनेटली यहाँ पे जो सेल आ रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। जैसे आपने सपोज मैथमेटिक्स का पेपर लिखा, इट वॉज फॉर 80 मार्क्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी। उस 80 मार्क में से आप एग्जाम से निकल के एकदम चिल्लाना चालू कर रहे हो कि मेरे को तो 50 मिलेगा। डेफिनेटली मैंने 50 मार्क का लिखा है, मुझे 50 मिलेगा, बट यू गेट अराउंड 45 मार्क। ठीक है, सो हियर 50 मार्क वॉज योर प्रिडिक्शन। आपने सोचा, आपने प्रिडिक्ट किया, इज 50 मार्क इज योर प्रिडिक्शन। एक्चुअल हाउ मच यू आर गेटिंग इज 45, सो 50 माइनस 45 इज द एरर यू आर जनरेटिंग। बट देर इज अनदर चाइल्ड who is saying he will be getting 50 marks, he is predicting and he actually got 50 marks, तो उसका error हो गया 0। another child says I will be getting 50 marks and he scores 49 marks, so his error is 1। समझ में आया? तो prediction और actual value में कम error होना चाहिए। so this software का काम क्या होना चाहिए कि आपका जो error है prediction का वो कम होना चाहिए। so if it is saying $21 का सेल, तो आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना नहीं है AIML का सॉफ्टवेयर जो एरर 0 दे। फिर से सुन लो, आज तक AIML का सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो एरर 0 दे। वो एरर देता है, एरर कम करने का काम आप लोगों का है। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है ना, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसके पीछे के कंसेप्ट पढ़ के आप एरर कितना कम करके लेके आते हो, फॉर दैट यू विल बी पेड। उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाना आपका काम नहीं है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है। समझ में आया? सो द पर्सन हु रिड्यूसेस द एरर विल गेट मोर सैलरी। इसीलिए ना बहुत लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेट से कोड उठा लेते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, पर कोर प्रिडिक्शन दे रहा है, टीचर लोग भी हाँ बोल देते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू reduce, एटलीस्ट देयर शुड बी 10 to 15 पेजेस of your report in which you should mention that I have reduced the error by so and so methodology। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है उसका हम पूरा डिटेल तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर लर्न कैसे करता है, देखो। सॉफ्टवेयर को हम सबसे पहले क्या करेंगे ना,
ये डेटा शीट जो है रेडियो का मार्केटिंग का कॉस्ट एंड सेल्स का कॉस्ट, ये पूरा का पूरा डेटा शीट हम अपलोड कर लेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे जुपिटर नोटबुक में हम अपलोड कर रहे थे, है ना, pd.read_cv से ऐसे हम उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद व्हेन वी अप्लाई एनी मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आंसर चेक करेगा। देखो 22.1 से आंसर वेरी कर रहा है 114 तक, यहाँ इनके बीच में से ना एक रैंडम वैल्यू निकालेगा। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू निकाल लिया से 17। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, एक्चुअली सब सॉफ्टवेयर ऐसा वर्क नहीं करता है, पर मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। एक रैंडम वैल्यू निकालेगा से 17। जैसे बोला था ना, मम्मी ने सबसे पहले एप्पल दिखाया और बोला कि ये एप्पल है, तो सीखने के लिए कहीं से तो चालू करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहला एक रैंडम नंबर निकाल दिया 17। अब क्या करेंगे ना, ये तो हो गया प्रिडिक्शन। एक्चुअल सेल्स क्या था 22.1, इट वॉज माई एक्चुअल सेल्स, दिस इज द प्रिडिक्शन। अब दोनों को माइनस करोगे तो मिलता है 5.1, 22.1 माइनस 17 करोगे तो हो जाएगा 5.1। ठीक है, अभी क्या होगा ना, आपका एरर आ गया 5.1, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ओ ये दिख नहीं रहा है पूरा, हाँ अभी दिख रहा है। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर दे रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है आपका एरर। तो पहला वाला जो सीरियल नंबर था, पहले वाले मंथ का जो डेटा था, इट वॉज 37.8 का मार्केटिंग कॉस्ट जा रहा था, सेल हो रहा था 22.1, प्रिडिक्शन हो रहा था 17, एरर हो रहा था 5.1। तो हमने क्या किया है ना, ग्राफ में देखो क्या किया हुआ है, वाई एक्सिस पे है एरर, एक्स एक्सिस पे है मंथ का डिटेल, मतलब ये पहले वाले महीने में एरर कितना आया प्रिडिक्शन का, 5.1 का एरर आया है। तो ऐसे करते करते ना, ये महीना दिया हुआ है, 17 महीने हैं, यहाँ पे भी 17 है, 23 मंथ था, उसमें से मैंने सिर्फ 17 महीने का ही यूज किया डेटा, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ऐसे प्लॉट हो गया, फिर से ध्यान से सुन लो, वाई एक्सिस पे है एरर, एक्स एक्सिस के ऊपर है मंथ, पहला मंथ दूसरा मंथ, तो पहले मंथ का एरर है 5.1 ओवर हियर। हम एरर प्लॉट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो हम देखेंगे। फिर क्या हो गया, ये देख लिया कि एरर 5.1 आ गया, अब कुछ तो सॉफ्टवेयर के ना बैकएंड में ना कुछ तो कैलकुलेशन होगा, और हर एआई के सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है। समझ में आया, मोर देन 50 एल्गोरिदम्स हैं, हर एल्गोरिदम अलग तरीके से कैलकुलेशन करता है, इसलिए दे आर डिफरेंट। तो कुछ तो कैलकुलेशन होगा एल्गोरिदम के एंड में सॉफ्टवेयर में, और क्या होगा, कैलकुलेशन के बाद वो फिर से एक नया प्रिडिक्शन लेके आएगा सेकेंड मंथ के लिए। तो सेकेंड मंथ का देखो, यहाँ पे गया सम कैलकुलेशन इज हैपनिंग, अब फिर से एक प्रिडिक्शन देगा 41। ठीक है, अब फिर से उसका एरर चेक होगा, तो एरर हो गया 4.1, सो नाउ द एरर हैज रिड्यूस्ड। काम वही है, एरर को रिड्यूस करते जाओ। फिर से क्या होगा, फिर से सेल्स का प्रिडिक्शन करेगा, फिर से कैलकुलेशन होगा, फिर से सेल्स का प्रिडिक्शन होगा, फिर से एरर चेक होगा, लेकिन इस बार एरर बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एरर कम होते जाएगा, एरर कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा। जब आपको फीवर आता है, इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है, फर्स्ट डे फीवर बहुत ज्यादा होता है, फिर दोपहर में थोड़ा कम होता है, फिर से नेक्स्ट डे बढ़ जाता है, फिर कम होता है, ऐसे बढ़ना कम होते होते फिर 3-4 दिन बाद में फीवर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे। ठीक है, देखो फिर से प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर से एरर बढ़ गया, ये देखो रेड डॉट यहाँ पे जा रहा है, देन अगेन इट विल डू सम कैलकुलेशन, फिर से प्रिडिक्ट करेगा, अब एरर कम हुआ है, फिर से प्रिडिक्शन दिया, फिर से एरर देखो 2 हो गया है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे प्लॉट हो गया है 2। ठीक है, तो 6th मंथ में एरर हुआ है 2, 6 मंथ के डेटा से एरर हो गया है 2, और आगे जाएगा एरर और रिड्यूस हो रहा है, और आगे जा रहा है एरर और रिड्यूस होगा, ऐसे करते करते ना एरर रिड्यूस होता है, होता है, होता है। लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है ना कि एरर और नीचे जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एरर विल नॉट गो डाउन। ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर फीवर के बाद में अगर जितना है उतना ही रहने वाला है, फीवर कम होने के बाद में जीरो तो नहीं होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, एरर इज नॉट गोइंग डाउन बट इट इज रिमेनिंग कंटिन्यूअस, यू सी ओवर हियर। ठीक है, एरर कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है,
समवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। देखो फिर मैंने क्या किया ना, एक लाइन प्लॉट किया है यहाँ से, और यहाँ से ना स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एरर का स्ट्रेट लाइन। समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट एरर। क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट एरर आया उसका क्या मतलब है, आप क्या इंटरप्रेट करते हो? कांस्टेंट एरर आया, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है आपका? एनीवन, कुछ भी फालतू आंसर भी चलेगा इन द चैट बॉक्स। चलो चलो, कोई कुछ तो आंसर करो। आई रिपीट अगेन, सॉफ्टवेयर जो है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है एरर कांस्टेंट देने लगता है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि अब सॉफ्टवेयर जितना सीख सकता था ना उतना सीख लिया है, अब और उसको डेटा देने की जरूरत नहीं है आपको। एरर कांस्टेंट दे रहा है ना, तो अब वो जितना सीखना चाहिए था। अभी वशिष्ठ ने लिखा है कि एल्गोरिदम हैज रीच इट्स पॉइंट ऑफ हाउ करेक्ट इट कैन बी। यस यस, एकदम सही। मैक्सिमम लर्निंग पॉइंट, यस, मैक्सिमम लर्निंग पॉइंट, एकदम स्पेसिफिक आंसर है। आपको मैंने मैथ्स के लेक्चर में बिठा दिया, ठीक है, 1 घंटा आपको बहुत अच्छा लगा, अरे सर क्या सिखा रहे हैं, 1 घंटा बहुत सही लगा, 1.5 घंटे में भी अच्छा लगा, लेकिन 2 घंटे के बाद कुछ आपके दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो फुल हो जाता है और सैचुरेशन लेवल आ जाता है, अब सीखने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। तो उतना सीखने में जो आप आंसर दोगे उससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। उतना सीखने के बाद कितना भी सीखो, आप लाने वाले हो 80%। ठीक है, तो मैक्सिमम रीच हो गया, अब सॉफ्टवेयर उतना ही सीखा है। अब आगे जाके जो सॉफ्टवेयर एरर देने वाला है वो एरर देगा 0.8 का। मतलब अगर सॉफ्टवेयर को पूछा जाए कि रेडियो के सेल्स में $40 डालूं तो कितना सेल मिलेगा, तो अगर आंसर मिलता है कि सेल मिलेगा $58 का, तो उसमें जो एरर होगा इट विल बी अराउंड एवरेज एरर ऑफ 0.8। 0.8 का वो एरर दे रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि 0.8 का एरर दे रहा है। तो अगर मेरे को आंसर दे रहा है 50 का, तो मैं समझ लूंगा प्लस और माइनस 0.8। तो एटलीस्ट मुझे व्यू तो मिल रहा है कि 0.8 के आस माइनस करूं या प्लस करूं, मुझे उतना तो मुझे सेल मिलने वाला है। सो फॉर दिस फॉर दिस थिंग, every industry has started giving their data sheet to data analyst, to data scientist, to business analyst। एवरी इंडस्ट्री हेल्थ केयर में वो लोग डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए इंसान का पिछले 6 महीने का डेटा निकाल के डाल देंगे, और बहुत सारे पेशेंट का डेटा निकाल के डाल देंगे, और कोई नया पेशेंट आया, सॉरी, बहुत सारे पुराने पेशेंट का डेटा निकाल के दे देंगे, और कोई नया पेशेंट आया तो उस नए पेशेंट को का सिम्टम देख के सॉफ्टवेयर में डाल के यू कैन प्रिडिक्ट, विदाउट उसका ब्लड रिपोर्ट के आने से पहले यू प्रिडिक्ट कि उसको क्या डिजीज हो सकता है, विथ सम एरर, 1% 2% एरर। तो डिजीज प्रिडिक्शन में एप्लीकेशन आ रहे हैं, फाइनेंस में आ रहा है, सबसे ज्यादा फाइनेंस में एप्लीकेशन आ रहा है स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन के अंदर, कि ये पिछले 20 साल का ये कंपनी का ये डेटा है, ठीक है, ये इसका स्टॉक प्राइस कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके लिए बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ सॉफ्टवेयर वर्क। एंड एरर, जब एरर, अगर सपोज यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर एरर जा ही नहीं रहा है, एरर फ्लक्चुएट हो रहा है, 17 डेटा में एरर फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कांस्टेंट आया ही नहीं, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इनसफिशिएंट डेटा है। इसीलिए बोला जाता है कि एआई के सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए, इस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर प्रिडिक्शन। तो सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने के लिए ना बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है, ऐसे क्या 11-17 डेटा में वो कभी आपको आंसर नहीं देगा।